मेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है। 75th Independence Day, a very important day in the history of our land. It is the day when we gained freedom from the British colonial rule after a long struggle. We take this opportunity to pay our gratitude to the freedom fighters who laid down their lives to preserve our nation. Good morning, respected Principal Ma'am, Rachna Ma'am, teachers and my dear friends. I, Ishani, And I, Balram, with freedom in mind, faith in the words and pride in our soul, welcome all of you to celebrate the Red Letter Day that marks a new chapter in the history of our nation. हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। सचमुच सैनिकों की इसी भावना और जज्बे को हम सलाम करते हैं, जिसकी बदौलत हम आज आजादी की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमारी आजादी कितनी अनमोल है, जिसके लिए न जाने कितने वीरों ने अपनी जान कुर्बान की। भारत के उन्हीं सपूतों को नमन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। Let's commence by remembering the Almighty. Kindly take the prayer position. हे प्रभु दान दो, ऐसा वरदान दो, हे प्रभु दान दो, ऐसा वरदान दो, भक्ति विश्वास दो, एक ही आस हो, जब तक सांस हो, तेरा ही गुणगान हो, तेरा ही गुणगान हो। हे प्रभु दान दो, आप इस पार हो, आप उस पार हो, आप इस पार हो, आप उस पार हो, दो जहां के प्रभु आप ही सरकार हो, दो जहां के प्रभु आप ही सरकार हो। इसी एहसास से और विश्वास से, इसी एहसास से और विश्वास से, वीर को मिटाए हम, प्रेम को सजोए हम। हे प्रभु दान दो, इस जगत में प्रभु आप ही सहारा हो, इस जगत में प्रभु आप ही सहारा हो। तेरे हो जाए हम, तुझ में खो जाए हम, तेरे हो जाए हम, तुझ में खो जाए हम। भलाई की डगर पे चलते ही जाए हम, भलाई की डगर पे चलते ही जाए हम। दुख मिले या सुख मिले, बढ़ते ही जाए हम। हे प्रभु दान दो, ऐसा वरदान दो, भक्ति विश्वास दो, एक ही आस हो, जब तक सांस हो, तेरा ही गुणगान हो, तेरा ही गुणगान हो। ईशानी, क्या तुम्हें पता है, ये हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है। इसे हम इस बार आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। Amrit Mahotsav? Never heard of it before. Could you shed some light on it, please? इसका उद्देश्य स्वाधीनता सेनानियों के विचारों तथा उनके द्वारा दी गई प्रेरणाओं को जीवन में उतारकर एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। Well, Azadi Ka Amrit Mahotsav, a Government of India initiative, is an intensive countrywide campaign which will focus on citizen participation. It will be converted into a Jan Andolan, where small changes at local level will add up to significant national gains. इसका उद्देश्य भिन्न राज्यों के लोगों के बीच भाषा, सीखने, मूर्त और अमूर्त संस्कृति आदि क्षेत्रों में आपसी समझ को बढ़ावा देना और लोगों के बीच आपसी जुड़ाव के मार्ग को प्रशस्त करना है। With this feeling of pride, let us rise for the hoisting of the national flag.
जनमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। Reflecting on the precious gift that independence is, we now request our Honorable Principal Miss Seema Sahai to share with us her invaluable thoughts. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hours, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Good morning, our esteemed parents, teachers and students. Today, there is hardly anyone amongst us who woke upon the midnight of 15th August 1947 to hear India's tryst with destiny. The agony and humiliation of being a subjugated country governed by the foreign power aroused the strength to struggle for India's independence from British hegemony. India was aptly referred to as Sone ki Chidiya, and today, 75 years later, we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, which means the elixir of the energy of freedom. It means the inspiration from freedom fighters, the nectar of new ideas and new resolutions. This day is an opportunity to pay tribute to all our fellow countrymen who were led by the father of nation, Mahatma Gandhi. Gandhiji led this movement for freedom from below. All countrymen and women came together to break the shackles of bondage to liberate India. Let us pledge today that we, in our individual capacity, bring that sense of duty, purpose, allegiance and honesty in our personal responsibilities and convey our patriotism for our nation through action and not merely by singing the national anthem. The hard-earned struggle of independence should be valued by all citizens, and may the country repose that trust on each one of us to ensure that our acts of benevolence may keep our national flag flying proudly forever. Jai Hind. Thank you, ma'am, for such an insightful address. चलिए मिलते हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों से जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। Let's give a big round of applause to the students of grade 3 who take us back in time, donning the hats of our freedom fighters and enthusing us with the same zeal and motivation to spark the spirit of nationalism. आजादी के लिए लड़ाई एक चिंगारी है जो भविष्य में एक विकराल रूप लेगी। मैं रानी लक्ष्मीबाई यह प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त की आखिरी बूंद है, मैं झांसी की रक्षा करूंगी। वंदे ने हर बोनों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब नरी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भारत माता
one day definitely descend upon the nation. देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना सामाजिक सुधारों से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं बाल गंगाधर तिलक की स्वीकार करता हूँ कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूंगा। मेरा अनुभव है कि हमेशा आशा की कोई ना कोई किरण आती है जो हमें जीवन से दूर भटकने नहीं देती। आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उस पर जीना होगा: सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। I, the Nightingale of India, was introduced to Indian politics and freedom struggle by Gopal Krishna Gokhale. With Mahatma Gandhi's guidance, I got involved in the freedom struggle and fought for the attainment of self-rule. I am Sarojini Naidu. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है लिए हथियारे दुश्मन ताक में बैठा उधर और हम तैयार हैं सीना लिया अपना इधर। असफलता तभी मिलती है जब हम अपने आदर्श, लक्ष्य और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। मैंने गुलाम भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाने के लिए चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस देश के सभी बच्चे मुझे प्यार से चाचा नेहरू कह के पुकारते हैं। मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा घर जेल है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। जय हिंद। रघुपति घबरा जा राम, पतित पावन सुताना। I am Mohandas Karamchand Gandhi, also known as Bapu. I want to give you a message on violence, truth, love, and togetherness. Mark my words. Be the change you want to see in the world. भारत माता की जय। इस खूबसूरत और शानदार प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We are privileged to have one of our veterans, retired Brigadier Tejendra Singh, a Veer Chakra recipient who has led an exemplary life of bravery and dedication. On 9th December 1971, Second Lieutenant Tejendra Singh was detailed to lead a contingent to select a site for a lane through a minefield in the Shakkargarh sector of Punjab. He personally cleared a lane through a minefield up to a tank which had earlier been damaged by a mine and helped in its recovery. In this action, he displayed enormous gallantry, determination, and leadership of a high order. May we now invite Sir to inspire our young Goenkans with his thoughts on this proud moment of our 75th Independence Day. Good morning, sir. My name is Harshita Mathur, and I would like to ask you, what inspired you to join the army? Children, as a young boy, I was always attracted towards the defense forces. And with that in mind, I always went for NCC, scouting, auxiliary cadet corps, and wherever uniform was worn. I was studying in Dehradun in DAV college when I got selected in the army, and I joined army in 1970, 15th March. As luck would have it, war was waiting for us, and I fought 71 war. What are the various roles of army personnel other than combating
award? Yeah, very good question. When everyone fails, the army prevails. You know, in our country, there are earthquakes, floods, and other act of gods which cause problem like fires and all. Or the bridge goes down, or the railway bridge goes down, the army is called. Army holds the medical camps for the people in J&K and everywhere in the tribal areas. Army produces sportsmen of the highest order. The recent example is that the gold medal won by our Major Chopra. So army is everywhere. It restores peace when some violent mob attacks or creates problem. We have all seen in Delhi. Army can do anything, everything. Sir, how are all army personnel so similar, both in appearance and passion? Our motto is uniformity. In that, we have same dress, we talk the similar manner, and inculcate the feeling of oneness. There is no difference of caste, creed, status, and we live together, dress together similarly, and speak the same language of national pride. So we look same. Sir, how do you instill patriotism in the officers that can inspire young children also? Children, the sense of patriotism is sometimes inbuilt, and those who are interested, they only join forces. Otherwise, there are various fields where people can work. But to my mind, all Indians, whether in uniform or civilians, are patriots. Only thing is, in army, we ingrain in them the sense of valor, pride for the nation, and we call our India as motherland. So patriotism becomes obvious, and we act that also. So how can one join the army, and how can young children be prepared to serve the country in times of need? Children, you must have heard about National Cadet Corps. We call it NCC, and those who are from Delhi, they know every year during January a camp is held in Delhi cantonment, and the students from all over the India, they come and join that. NCC teaches you the discipline, physical fitness, and love of the land, of your motherland. So I don't know all of you are interested or not, but some of you, those who are really interested, including the girls. You know, the girls are now joining defense forces, so there is an avenue open for them also. They also should do NCC. So how is the role of women expanding in the defense sector? The girls started coming to Army, Air Force and Navy somewhere in 90s, mid-90s. Earlier their role was very limited. They were not given to the fighting arms, and their role was in the Judge Advocate General branch, Army Service Corps, Ordnance Corps. Now, and they were given the Short Service Commission. Now, you must all know that girls are also eligible for permanent commission after they complete their Short Service Commission tenure. The film industry recently made a film called Gunjan Saxena, and you've seen that how she fights the enemy and shows the courage despite that she is being snubbed by the male chauvinist. Actually, it doesn't happen, but somehow in movies it happens. Girls are more honored and respected as anybody else. Sir, can you elaborate upon the importance of physical and mental fitness and having a disciplined routine, whether in army or not? For
from the very beginning, during your childhood, we were taught if your wealth is lost, nothing much is lost. You may regain it. But if your health is lost, you have lost so much. With health only or with fit body and mind, we can perform all functions of life. Be it war, be it business, whatever. If you want to do yoga, you require a flexible body and a good mind. So keeping good health doesn't mean that only our body should be fit, our mental fitness is very necessary. Keeping a robust health means keep body and mind in unison. Otherwise, if you see a pahalwan with muscle and if he comes across a man with a gun, he starts shivering because he's not mentally fit. Otherwise, a thin looking man may charge the man and snatch his gun. So we must keep in mind that whether we are doctor, engineer, soldier or a businessman, health is most important. Thank you. So, would you like to share any tips for young aspirants for preparedness in the role of defense? The very famous song, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के. That means now you are the future leaders in all walks of life, whether army, navy, air force, or political leaders, or scientists, doctors. You have to work for your country. Wherever you are, whatever you're doing, work hard and be honest to yourself first. Always speak nicely with people, make friends, not enemies. Study hard and always, I say always, think of your country first. Your religion, your caste, your class, last. Thank you. Thank you so much, sir, for your encouraging words that have certainly added tremendous passion to our Independence Day celebration. Thanks once again. ईशानी, भारत के उन वीर सपूतों ने देश की आजादी के कितने ही सपने देखे होंगे, परंतु वो उन सपनों के पूरा होने से पहले ही शहीद हो गए. चलो आज उन वीरों के सपनों को साकार कर नव भारत का निर्माण करें. देखते हैं अगली प्रस्तुति, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं वेदांत, सौरभ और इल्मा. देखो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो. जग जग के जीवन में फिर से नव जीवन नव प्राण भरो. नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई. नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई. युग युग के मुझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो. देखो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो. डाल डाल पर बैठ रहत कुछ नए स्वरों में गाते हैं. गुनगुन गुनगुन करते भवरे मस्त हुए मंडराते हैं. नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो. उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो. कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है. धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है. नूतन मंगलमय ध्वनियों से गूंजित जग उद्यान करो. उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो. सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है. तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है. शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो. उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो. उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो. How beautifully the poem is able to capture the mood of the celebration. Thank you, dear friends, for enthralling us with your amazing rendition that truly evokes patriotism. अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं नृत्य नाटिका जश्न आजादी, जो स्वतंत्रता के उपरांत भारत की उपलब्धियों की एक झलक है.
जिसमें भारतीयों के हर प्रयास को सराहा गया है। सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने ए सपने अंबरां दे ए सपने अंबरां दे बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे फिर ना समंदरा दे फिर ना समंदरा दे जल्दी उठो रुमान बेटा, जल्दी उठो, देखो 6 बज गए। उठो जल्दी, आपका रिजल्ट आने वाला है ना, जल्दी उठो बेटा, जल्दी उठो। ओह माँ, आज तो मेरा रिजल्ट आने वाला है। I have really high expectation, पर साथ में मुझे डर भी लग रहा है माँ। क्यों बेटा, डर क्यों लग रहा है? मेहनत की है तो रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। तो तुम जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाओ, इतने में मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ओके ओके अम्मा। क्या रिजल्ट क्या रहा? पास तो हो गया माँ, पर बस 75% आए हैं। 75%? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो इसी बात पे शाम को कुछ खास पकवान बनाए जाएं। क्या? बहुत अच्छा माँ। किस बात का सेलिब्रेशन? 75% कुछ होता भी है? मतलब 75% अच्छे नहीं होते? नहीं होता। 75% बहुत अच्छे होते हैं। मालूम है, इसे डिस्टिंक्शन कहते हैं। आपके जमाने में होगा, आजकल 99% को डिस्टिंक्शन कहते हैं, 75 को नहीं। बेटा 99% लाना बहुत अच्छी बात है, मगर 75% का भी अपना मोल है। क्या मोल है? कुछ मोल नहीं है माँ। चलो मैं तुम्हें कुछ इस तरह समझाने की कोशिश करती हूँ, आओ मेरे साथ। यह देखो, हम इस वर्ष आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 99 या 100वीं तो नहीं। तो क्या हमें अपने 75 सालों की उपलब्धियों का उत्सव नहीं मनाना चाहिए? हाँ, माना कि हमने सब कुछ नहीं पाया है, लेकिन हमने बहुत कुछ पा भी लिया है। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। देखो बेटा, यदि हम आजाद भारत के 75 सालों को देखें, तो हमें लगता है
हमने नए भारत का निर्माण किया है और जिस भारत को हम इतिहास में देखते आ रहे हैं उससे हम कई आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन हम आज भी बहुत पीछे हैं, हमसे कई देश आगे हैं। पीछे? किससे पीछे? क्या हम अपने आप से आगे नहीं बढ़े? क्या हमने अपना नव निर्माण नहीं किया? क्या हमने अपनी कमजोरियों को दूर नहीं किया? क्या है माँ, मगर आप दुनिया को देखो तो हम आज ही बहुत पीछे हैं। मगर हमने विश्व में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। कैसे? देखो बेटा, हमारी संस्कृति सनातन है और हमारी सभ्यता सबसे पुरानी, जिसके कारण हमारी विश्व में अनादि पहचान है। लेकिन माँ मॉडर्न इंडिया की बात करो। चलो मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं। मॉडर्न इंडिया सनातन के बीच से आधुनिकता का ज्ञान देती है, विविधता में एकता का संदेश देती है और तो और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान है। आजाद भारत के इस लोकतंत्र ने क्या किया? इस लोकतंत्र ने हमारी कमजोर शिक्षा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कैसे? सर्व शिक्षा अभियान आजाद भारत की देन है। IIT से लेकर IIM तक शिक्षा के विकास की कहानी है। इसके अलावा और भी कुछ है? चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा देश चौथे स्थान पर है। देश हो या विदेश, भारतीयों का शिक्षा में ऊंचा स्थान है। बस इतना है? इन 75 सालों में हमने यही पाया है ना? नहीं बेटा, इन 75 वर्षों में हम कभी तट पर खड़े हैं तो कई क्षेत्र में भारत गर्व पर भी खड़ा है। कैसा गर्व माँ? इन 75 वर्षों में हमारे वैज्ञानिकों ने जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर तय किया है। जिस कंप्यूटर पर तुम गेम्स खेलते हो और ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, उसमें लगी पेंटियम चिप के इन्वेंटर को जानते हो? नहीं माँ। मिस्टर विनोद धाम, एक इंडियन। और फोर्टमैन जैसा मेल किसने इन्वेंट करा था, ये जानते हो? नहीं माँ। मिस्टर सबीर भाटिया, ये भी एक इंडियन ही थे। आर्यभट्ट सैटेलाइट से लेकर चंद्रयान 2 तक इसरो ने अपनी एक अलग ही जगह बनाई है। और तो और हमारा मंगलयान, हम एशिया में पहले और विश्व में ऐसे चौथे देश हैं जो मंगल ऑर्बिट पे पहुंच पाए हैं, वो भी पहले ही सफल प्रयास में। Mangalam Mission Mangalam Om Mangalam Mission Mangalam Om Mangalam Mission Mangalam मंजिल दूर 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 है, मुश्किल पास है, फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है। Om Mangalam Mission Mangalam मंजिल दूर 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 है, मुश्किल पास है, फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है। चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक, हम पूरा चांस है। 3, 2, 1 boom। दिल में मार्स है, क्योंकि दिल में मार्स है, अपने दिल में मार्स है, उड़ने की प्यास है।
पास है, फुल टू मूड 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 में हम बिंदास है। चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक, हम पूरा चांस है। 3, 2, 1, boom. दिल में मार्स है, ओ दिल में मार्स है, अपने दिल में मार्स है, उड़ने की प्यास है, क्योंकि दिल में मार्स है। ओम मंगलम मिशन मंगलम स्पीड मंगलम मेडल मंगलम जोश मंगलम जश्न मंगलम स्टाइल मंगलम दर्शन मंगलम कॉस्मोस कंडीशन मंगलम टेक ऑफ परमिशन मंगलम। ओम मंगलम मिशन मंगलम कायनात सारे स्वाहा। Cheering from scientists at the Space Research Organisation in India after the country became the only one in the world to successfully reach Mars on its first attempt. The Mangalyaan spacecraft entered the red planet's orbit on Wednesday after a journey of more than 10 months. बदलता भारत ही आजाद भारत की कहानी है। माँ, तुम्हें नहीं लगता हम लोगों को बदलने में बहुत समय लग गया? समय सबके लिए अलग है। जहाँ हम आजादी के बाद खड़े हैं, वहाँ से देखें तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। दूसरों से आगे बढ़ना इतना जरूरी नहीं है जितना अपने आप से आगे बढ़ना जरूरी होता है। कैसे जरूरी है माँ? देखो बेटा, हमारे लाइफस्टाइल को गांव से शहरों का विकास एक दिन का तो है नहीं। पुल से मान तक की यात्रा भी एक लंबी कोशिश का नतीजा है। आज भी कई दिक्कतें हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय रेल का नेटवर्क भी सबसे बड़ा नेटवर्क है। रेल से मेट्रो, मेट्रो से बुलेट ट्रेन तक की यात्रा भी आधुनिक भारत की पहचान है। रेल से हवाई जहाज तक विश्व में हम किसी से कम नहीं। माँ, हमारी इकोनॉमी का क्या? इन 75 वर्षों में हमने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर टाटा बिरला जैसे उद्योगपतियों ने उद्योग लगाकर रोजगार दिए हैं, बल्कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों पर भी नाम कमाया है। 2011 में हमारी इकोनॉमी तीसरे स्थान पर थी। हालांकि कोरोना महामारी के कारण हमारी इकोनॉमी का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन हमें अपनी आर्थिक नीतियों से पूरी उम्मीद है जो हमारी अर्थव्यवस्था को पहले जैसे रफ्तार देंगी। मगर माँ, हम परमाणु शक्ति में तो आगे नहीं हैं। लेकिन हम किसी से कम में तो नहीं है। सेना सरहद की ताकत है। सेना हमारी आजादी का कवच है। भारतीय सेना अस्मिता की शान है और हमारे देश की सेना किसी भी विश्व की सेना से कम नहीं। 2015 की क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सशस्त्र बल दुनिया के 5वीं सबसे शक्तिशाली सेना है, जबकि 2020 की ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट में इसे चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
हाथों में है थाम लिया। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना। क्या ये 75 वर्षों का सफर सफल है? देखो बेटा, माना कि 75 वर्ष बहुत होते हैं, लेकिन इन 75 वर्षों में हमने अपनी कमजोरियों से लड़ा है, अपनी कठिनाइयों का सामना किया है। माना कि दूसरों के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ना है, लेकिन उससे भी बड़ा काम होता है अपनी उपलब्धियों की रक्षा करना। तुम कितने % मार्क्स लाए हो, यह इतना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि तुम इन 75% मार्क्स को अपनी जिंदगी में कैसे उपयोग करोगे। मैं भी 75% मार्क्स से किसी भी एंट्रेंस को देकर अपने मनपसंद कॉलेज जा सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। उपलब्धियों की सफलता उसके प्रयोग में है। 75% हो या 99% हो, उसका विकास सार्थक होना चाहिए। जैसे हम अब इन 75 वर्षों में कितना बढ़े और कैसे बढ़े, इन दोनों को देखना जरूरी है। विकास ही हमारे प्रगतिशील होने का प्रमाण है। आओ सब मिलकर गाएं आजादी का जश्न मनाएं, आन बान और शान से गूंज उठे सारा आसमान, जन गण के गान से गौरव और स्वाभिमान का दिन है ये 15 अगस्त। झूमो नाचो मिलकर का अपने जश्न आजादी मान को। सबसे पहले सबसे बढ़ के दिल में मेरे है ये मेरा वतन। आसमां भी हार जाए कर ले कोई जतन। सबसे बढ़ के दिल में मेरे है ये मेरा वतन। आसमां भी हार जाए कर ले कोई जतन। मैनू लगया ओ मैनू लगया ओ मैनू लगया लगया लगे लगया लगया लगे लगया कसुंबी रंग ऐसा। मैनू लगया लगया लगे लगया लगया लगे लगया कसुंबी रंग ऐसा। मैनू लगया लगया मैनू लगया लगया मैनू लगया कसुंबी रंग ऐसा। मैनू लगया लगया लगी लगया लगया लगी लगया कसुंबी रंग। सिर पे जोड़ जाएंगे जग से भी लड़ जाएंगे, आबरू इसकी रखने को तो मैं वारी गावा ये जीवन। कैसा मैनू लगया लगया लगी लगया लगया लगी लगया कसुंबी रंग ऐसा। मैनू लगया लगया लगी लगया लगया लगी लगया कसुंबी रंग ऐसा। मैनू लगया लगया लगी लगया लगया लगी लगया कसुंबी रंग। अपना लोहा माने दुनिया ये बनाया है मन। सारा दम हम डाल के हम पूरा कर दे वचन। अपना लोहा माने दुनिया ये बनाया है मन। सारा दम हम डाल के हम पूरा कर दे वचन। डर से ऊपर उठ गए सर हौसले हैं बुलंद। इस इरादे को हिला दे हर किसी में कहाँ है इतना दम। मैनू लगया ओ मैनू लगया ओ मैनू लगया लगया लगी लगया लगया लगी लगया कसुंबी रंग ऐसा। मैनू लगया लगया लगी लगया लगया लगी लगया कसुंबी रंग ऐसा। मैनू लगया लगया मैनू लगया लगया मैनू लगया कसुंबी रंग ऐसा। मैनू लगया लगया लगी लगया लगया लगी लगया कसुंबी रंग।
बुलंदी है जिसे झुका नहीं सकता कोई। ये वतन तिरंगा हमारा है, ये जश्न आजादी हमारी है। What a spectacular performance! It has definitely helped rekindle the true spirit of nationalism among us. लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। कव्वाली, कविता और संगीत का अच्छा मिश्रण, दोनों का एक सुंदर प्रदर्शन है। अब हम आपको आजादी के स्वर के माध्यम से देशभक्तों के उत्साह व प्रेम की एक भावपूर्ण प्रस्तुति दिखाने जा रहे हैं। मैं ये जानती हूँ कि आपके और मेरे दिल की आवाज़ एक ही है और यही आवाज़ पूरे आवाम की है। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं एहसासों को। मेरे दिल में कायम है चाहत वतन की, निगाहों में है सूरत मेरे वतन की। मैं दुनिया में चाहे जहाँ भी रहूँगा, नहीं खत्म होगी मोहब्बत वतन की, मोहब्बत वतन की। यह मेरा वतन, हम सब का वतन। यह मेरा वतन, हो हम सब का वतन। यह मेरा वतन, हम सब का वतन। गुरु घर में कुर्बानी का रस, गुरु घर में कुर्बानी का रस। लब में गुरु वचन, लब में गुरु वचन, लब में गुरु वचन। आए सदा मस्जिद से अदा की, आए सदा मस्जिद से अदा की, आए सदा मस्जिद से अदा की। मंदिर में गूंजे भजन, ये मेरा वतन, हम सब का वतन। ये है मेरा वतन, हो हम सब का वतन। ये है मेरा वतन, हम सब का वतन। सिखाते हैं मोहब्बत की ये बातें, सीख लो इनसे। सिखाते हैं मोहब्बत की ये बातें, सीख लो इनसे। अरे दोस्तों, हमसे तो अच्छे हैं ये परिंदे। कभी मंदिर, कभी मस्जिद पर जाकर बैठ जाते हैं। कभी मंदिर, कभी मस्जिद पर जाकर बैठ जाते हैं। कभी मंदिर, कभी मस्जिद पर जाकर बैठ जाते हैं। ये है मेरा वतन, हम सब का वतन। ये है मेरा वतन, हो हम सब का वतन। ये है मेरा वतन, हम सब का वतन। मेरे वतन की शान अलग है, मेरे वतन की शान अलग है। मेरा वतन मेरा वतन है आला। गिरजा और गुरुद्वारा इसमें, गिरजा और गुरुद्वारा इसमें, गिरजा और गुरुद्वारा इसमें। मस्जिद और शिवाला, हो मस्जिद शिवाला, हो मस्जिद और शिवाला। होली गीत, दिवाली, दशहरा, बैसाखी का मेला, हो बैसाखी का मेला, हो बैसाखी का मेला। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका यहाँ मिलन। ये है मेरा वतन, हम सब का वतन। ये है मेरा वतन, हो हम सब का वतन।
ये है मेरा वतन, हम सब का वतन। वाह, देशभक्ति की इस खूबसूरत अभिव्यक्ति ने सभी को आनंदित कर दिया। Very apt and impactful indeed. I would now like to call upon our headmistress, Miss Rachna Trihan, to kindly address the gathering and enlighten us with her words of wisdom. ऋषि मुनियों की तपोभूमि, जहाँ अद्भुत वेद पुराण है, गुरु की वाणी गुरु ग्रंथ गीता बाइबल कुरान है। सागर खुद जिसमें चरण छुए, हिमालय मस्तक की शान है। स्वतंत्र स्वच्छंद और सशक्त सदा, मेरा भारत महान है। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह पर ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आज़ादी और स्वतंत्रता जितने सुंदर शब्द हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है स्वतंत्र होने का एहसास। आज हम जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हम वे सब कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों व उन स्वतंत्रता सेनानियों के हम आभारी हैं, जिन्होंने हमें यह ज़मीन दी, जहाँ शांति व आज़ादी से हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं। आइए हम सब मिलकर स्वतंत्रता के इस 75वें वर्ष पर उन्हें नमन करें और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अनमोल उपहार के लिए धन्यवाद कहें। स्वतंत्रता के बाद एक दुर्बल भारत से उन्नत भारत तक की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन जब देश का हर नागरिक यह ठान ले कि उसे अपने देश के लिए कुछ करना है, बिना कुछ सोचे कि उसका योगदान बड़ा होगा या छोटा, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। और आज यह बात मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि 75 वर्षों के बाद हम एक मजबूत और महान राष्ट्र के रूप में दुनिया के सबसे युवा और लोकतांत्रिक देश बनकर खड़े हैं। गांधी जी कहते थे, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। उन्होंने स्वतंत्र भारत का सपना देखा और उसे पूरा कर दिखाया। भारत के नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग दें। एकता, अखंडता, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता की शक्ति से हम अपने देश की स्वाधीनता को मजबूत बनाने में सहयोग दें। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का शुभारंभ किया है। उन्होंने देश के युवाओं तथा विद्वानों को स्वतंत्रता आंदोलन की उपलब्धियों को विश्व के सामने प्रदर्शित करने का अनुरोध किया है। कला, साहित्य, थिएटर, फिल्म उद्योग तथा डिजिटल मनोरंजन से जुड़े लोगों से उनकी कहानियों को, जो हमारे अतीत में बिखरी हुई हैं, की खोज कर उनमें नया जीवन डालने का आग्रह किया है, ताकि उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा सके और हर वर्ग के योगदान को देश के सामने लाया जा सके। आज की युवा पीढ़ी में साहस और आत्मबल है, जिसके बल पर वह देश की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम उन संकल्पों को कार्य रूप प्रदान करें। एक आधुनिक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ें, समाज व देश हित के कार्यों में अपना योगदान दें, तभी हमारा देश विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त कर सकेगा। आज की असेंबली की खूबसूरत प्रस्तुति के लिए मैं सभी बच्चों और अभिभावकों को हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रिंसिपल मैम को उनके ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए धन्यवाद करती हूँ। अंत में मैं आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, ma'am, for your inspiring words. Ishani, on this solemn occasion, I can't help but quote the soulful lines written by our very own poet, Bankim Chandra Chatterjee. The poem, also known as Vande Mataram, is an ode to our motherland and describes the many qualities that she has. She has wonderful fields, prosperous orchards and streams. The country supplies the much-needed nutrients to the population and is a source of constant wonder. Mother, I bow to thee, rich with thy hurrying streams, bright with thy orchard gleams, cool with thy winds of delight, mother of might, mother free.
On this patriotic note, we end the assembly, conveying our Independence Day greetings once again to all of you. Jai Hind!